आप लोगों का स्वागत है एसके ऑनलाइन एकेडमी में। आज क्लास 5th का एनसीईआरटी सिलेबस मैथमेटिक्स का पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम न्यू चैप्टर क्लास 5th एनसीईआरटी। पेरीमीटर area and volume. What is meant by perimeter, what is meant by area, and what is meant by volume? Perimeter, first of all we know that what is perimeter. Perimeter means it is Greek word which is made by two word. Perimeter means first is peri and second is metron. What is the means of peri? Peri means around and metron means measure. Thus, perimeter is the distance around the plane figure or equal to the sum of all side line segment of the figure. It means that if we calculate the perimeter of rectangle, if we want to measure the perimeter of a rectangle, what should I do? Let this is 10 centimeter, this is 10 centimeter, this is 3 centimeter, this is 3 centimeter. What is perimeter of the rectangle? Perimeter, we know that peri means around and metron means measure. Around the figure which line segment is given, we have to solve. Perimeter means sum of all side. It means 10 plus 10 plus 3 plus 3, 26. That is the perimeter of rectangle. That is the perimeter of rectangle. Now, perimeter of rectangle. Now, if a square is given, 2 centimeter, and we know that a square means all sides are equal. 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. What should I do to find the perimeter of a square? Perimeter, sum of all side, now 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 8 centimeter. This is the perimeter of a square. Now we find the formula of perimeter of rectangle. Means what is the perimeter of rectangle? That is rectangle which have length, breadth, length. We know that what is rectangle? Some opposite side are equal. Then what is the perimeter of that figure? Means rectangle. Here we know that sum of all side. Now sum of all side, length plus breadth plus breadth. Here 2 into length plus 2 into breadth. Now we solve it. 2 into length plus breadth, 2 into length plus breadth. That is the perimeter of
rectangle. 2 into length plus breadth. That is the perimeter of rectangle. Now, perimeter of a square. What is the perimeter of a square? Now the figure first of all we draw. That is a square which have all sides equal. A, A. We denote side of the square with any alphabet. A, B, C, D. We can denote it any because the side of square is equal. All the sides are equal. Now we find perimeter. Know that perimeter means sum of all sides, then sum of all sides. A plus A plus A plus A. सम ऑफ ऑल साइड मीन्स चारों साइड बराबर होती है, इसीलिए a plus a all side are in the sum. Now we write number of a 1 2 3 4 4 into a 4 into a. This is the perimeter of a square where a is side of a square. Now some question on the basis of perimeter we solve. Let question number first. What is the solve the question? The length and breadth of a rectangle are 30 centimeter and 25 centimeter respectively. Now determine its perimeter. We have question that we have to find the perimeter of that question, where the question is given that length and breadth of a rectangle are 30 centimeter and 25 centimeter respectively. Determine its perimeter. Now first of all we draw a figure that is rectangle. Length and breadth, we know that length is equal to that length, that breadth is equal to that. So length means 30 centimeter, then this also be 30 centimeter, breadth be 25 centimeter, then breadth be 25 centimeter. Now we have to find the perimeter of rectangle. We know that what is the formula of perimeter of rectangle. Now we have to find perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle, we know that 2 into length plus breadth. Now here length is equal to 30 centimeter and breadth is equal to 25 centimeter. Now we put length as length place. 2 into length means 30, breadth means 25. Now 2 into 30 plus 25, 55, and 55 into 2, 110 centimeter. Answer. That is the perimeter of
rectangle given question. Now the concept of perimeter is clear. Now we find the area of any figure, means rectangle, square. What is area? What is area? Concept of area is given. What is area? The size of plane region enclosed by two different closed figure may be different. The measurement of region enclosed by closed figure is called its area. Means here area means क्षेत्रफल. मीन्स एरिया हम किसे कहते हैं, तो एक फिगर के जरिए हम जानते हैं व्हाट इज एरिया. देखो, दैट इज फिगर ए एंड दैट इज फिगर बी. एक क्लोज्ड फिगर, फर्स्ट क्लोज्ड फिगर, सेकेंड क्लोज्ड फिगर. हेयर वी सी डैट, हम देखते हैं यहाँ पे जो इसका साइज इसके मुताबिक छोटा है. मीन्स एरिया कहने का मतलब क्या, क्षेत्रफल. वो कितने दूरी में फैला हुआ है. किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका लेंथ और उसका ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मीन्स वो कितने दूर में फैला हुआ है, वही हम जानते हैं क्षेत्रफल से. तो हम क्या बोले, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका एरिया निकल जाएगा. तो ये देख रहे हैं जो एरिया हम किसे कहेंगे आप, एरिया इज दैट मेजरमेंट बाय विच वी मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एरिया. स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ये स्क्वायर है एक, प्रत्येक साइड बराबर होता है, ए ए ए, ये भी ए. तो हम कहें क्या, उसका लेंथ और उसका ब्रेथ का मल्टीपल ही उसका एरिया कहलाता है. तो हम करते हैं एरिया, इसका लेंथ क्या हो जाएगा ए, इसका ब्रेथ क्या हो जाएगा ए. मीन्स दोनों मिलके क्या हो गया, ए स्क्वायर. दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. ए स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर. वेयर ए इज साइड ऑफ स्क्वायर. Now you see second figure, that second figure. This first figure and this is second figure. We know that this is what, rectangle. This is rectangle, means this length is equal to this length, this breadth is equal to this breadth. We know that, हम जानते हैं जो इसका लेंथ इसके अपोजिट लेंथ के बराबर होता है, इसका ब्रेथ इसके ब्रेथ के अपोजिट ब्रेथ के बराबर होता है. तो एरिया कहने का मतलब क्या, एरिया मीन्स मल्टीपल ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया कहने का मतलब मल्टीपल ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ. तो ये फिगर इस फिगर से छोटा है, ये फिगर इस फिगर से बड़ा है. तो मीन्स इसका लेंथ इंटू ब्रेथ छोटा होगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स इसका लेंथ बड़ा है, इसका ब्रेथ बड़ा है. इसका लेंथ छोटा है, इसका ब्रेथ छोटा है. इसके मुताबिक इस फिगर के मुकाबले. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. अब इसी एरिया से लेंथ इंटू ब्रेथ से यही एरिया है रेक्टेंगल का एरिया यही है. तो इसी रेक्टेंगल के एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकाल सकते हैं. कैसे,
एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स दैट इज मल्टीपल लेंथ मल्टीपल बी। लेंथ निकालना हो तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऐसे ही है, यह मल्टीपल में इसको इस साइड ले जाएंगे डिवाइड में ब्रेथ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ। ये एल इंटू बी था, मतलब एरिया इजकल टू एल इंटू बी, तो लेंथ निकालने के लिए इंटू को हमको लाना पड़ेगा इस साइड, तो इंटू में क्या है बी, तो बी को हम लाएंगे तो इंटू मीन्स इस साइड अगर इंटू तो इस साइड ले जाने पर डिवाइड, तो वही किए हैं, लेंथ इजकल टू एरिया बाय बी। चलो अब हमको ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ कैसे निकलेगा, तो ब्रेथ मीन्स ब्रेथ भी इस साइड है, एरिया भी इस साइड है, लेंथ, तो ब्रेथ निकालने के लिए एरिया वही रहेगा, एरिया वहीं का वहीं रहेगा, हमें करना क्या होगा, लेंथ को हमको मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा, ब्रेथ वही है, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब बोलेगा तो अगर क्वेश्चन देता है, और क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोलेगा तो लेंथ करने का मतलब ये लेंथ 15 और ये ब्रेथ कितना 10 सेंटीमीटर, बोलेगा इसके एरिया निकालने के लिए, तो वी नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ के जगह पे लेंथ, ब्रेथ के जगह पे ब्रेथ, क्या हो गया 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम यूनिट हम क्या डालेंगे, सेंटीमीटर ही डालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर डालेंगे, तो सेंटीमीटर क्या डालेंगे स्क्वायर, क्यों डालेंगे स्क्वायर, तो देख यूनिट, यूनिट मीन्स इकाई, यूनिट मीन्स इकाई, अगर एरिया ऑफ, यूनिट मीन्स इकाई, अगर हम किसी का एरिया का यूनिट निकालते हैं जैसे लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अब इसका हमको यूनिट निकालना है, यूनिट, तो लेंथ का मेजरमेंट और ब्रेथ का मेजरमेंट किस किस चीज़ में हो सकता है या तो लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, कुछ में भी हो सकता है। अगर सेंटीमीटर कहेगा तो सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हम किसी भी एरिया निकालने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें हम सेंटीमीटर नहीं की सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अगर सेकंड क्वेश्चन देता है स्क्वायर पे, किसी भी स्क्वायर का लेंथ दिया हुआ है कितना, लेंथ करने का मतलब ए, मतलब साइड ऑफ ए, बिकॉज ऑल द साइड ऑफ इक्वल, साइड आर इक्वल, द लेंथ इज इक्वल टू ए, एरिया कितना, साइड कितना दिया हुआ है 1 मीटर, कितना दिया हुआ है 1 मीटर सेंटीमीटर, एंड एरिया सेकेंड साइड ब्रेथ मीन्स एरिया ए साइड मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, तो एरिया ए मीन्स साइड, साइड मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो ए 1 इंटू 1, बिकॉज लेंथ इज 1, ब्रेथ इज 1 इक्वल टू 1। अब यूनिट क्या डालेंगे, यूनिट भी हम क्या डालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर डालेंगे, क्यों,
क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विच मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एंड। अगर आपको कितने टॉपिक में पढ़ने में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कहाँ दिक्कत हुआ है। हम मिलते हैं अगले क्लास में वॉल्यूम को लेकर। व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बताएंगे उसमें। तो अगर आप इस वीडियो को अगर देखने में समझने में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। नाउ मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।